السلام علیکم کلاس 9 یہ غزل نمبر 2 ہے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ غزل کا مطلع ہے سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ مطلع پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو۔ اس شعر میں افسانہ اور غائبانہ قافیہ ہیں، کیا اور کیا ردیف ہیں۔ تشریح ہے، غزل میں عام طور پر حسن و عشق کی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آتش نے بالکل ہی الگ انداز اپنایا ہے۔ وہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے چاہنے والے تیرے سامنے تو تعریف کرتے ہیں، محفل میں ازراہ مروت زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، لیکن تیری عدم موجودگی میں تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جنہیں اگر تو سن لے تو تجھے ناگوار گزرے۔ تو اپنے رویے پر غور کر اور سوچ کہ ایسا کیوں ہے۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے حاکم وقت، تو اس خوش فہمی میں ہے کہ جو تو کہتا ہے یا کرتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن تجھے خبر ہی نہیں کہ لوگ تیرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دنیا میں تیرے متعلق جو کہانیاں بنی ہیں وہ بھی سن لے، اور یہ بھی جان لے کہ دنیا تیرے پیٹھ پیچھے یعنی تیری غیر موجودگی میں تجھے کس طرح یاد کرتی ہے۔ یہ مطلع کا شعر ہے، زبان زد عام ہو کر ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے۔ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ گل کہتے ہیں زمین کو، زیر زمین زمین کے نیچے سے۔ قارون ایک بادشاہ تھا، اور گل پھول سو زر بکف جو پھول کے اوپر پیلے رنگ کے زردانے ہوتے ہیں۔ یہ شعر جو ہے یہ اس شعر میں صنعت تلمیح اور صنعت تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ تلمیح کہتے ہیں جب کسی نثر میں یا شعر میں کسی واقعے یا کہانی یا آیت یا کسی مشہور شخصیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، تو اس میں قارون بادشاہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ صنعت تلمیح ہے۔ اور اس میں تعلیل یعنی ایک شعر میں بات کی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کی وجہ بتائی جاتی ہے، تو اس کو صنعت تعلیل کہتے ہیں۔ تشریح ہے، شاعر نے اس شعر میں تلمیح کسی تاریخی بات یا واقعے کی طرف اشارہ کرنا کا استعمال کیا ہے۔ قارون کا لفظ یہاں بطور صحیح استعمال ہوا ہے۔ قارون کو اللہ نے کثیر مال و زر دیا تھا، لیکن وہ مغرور ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ کی مخالفت میں ہر حد سے تجاوز کر گیا، تو اللہ نے اسے اس کے مال و زر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خزانے کا اثر ان پھولوں پر موجود زردانوں میں ظاہر ہو گیا ہو، اس لیے جو بھی پھول زمین میں اگتا ہے وہ سونے میں لپٹا ہوا لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے قارون زمین میں دھنستے ہوئے اپنا خزانہ لٹاتا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہ شعر حسن تعلیل کی مثال ہے۔ حسن تعلیل میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کی جاتی ہے جو اصل میں اس کی وجہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے شعر میں ایک حسن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 تشریحیں ہیں۔ یا شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ پھولوں کے اندر جو سنہرے زردانے ہوتے ہیں وہ دہکتے نظر آتے ہیں، وہ دراصل اس خزانے کا حصہ ہیں جو کسی زمانے میں قارون بادشاہ کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا تھا، اور اب وہ پھولوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس شعر میں تلمیح اور حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ قارون ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، جسے وہ قافلے کی صورت میں ساتھ لے کر چلتا تھا، اور خدا کے حکم سے وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ شعر نمبر 3 ہے۔ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر دل زنگ و کدورت سے پاک ہو اور ہر طرح سے صاف ہو تو پھر دل ایک شیش محل کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس میں چاروں طرف محبوب حقیقی کی صورتیں ہی صورتیں جلوہ گر نظر آئیں گی۔ دل ایمان و یقین کا مرکز اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کی بنیاد دلوں کی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو پاک و صاف کر دے اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھل جاتا ہے۔ طہارت قلوب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی طرف کی ہے کہ اللہ جن کے لیے چاہتا ہے ان کے دلوں کو پاک فرماتا ہے۔
तहारत क़ुलूब के बाद ज़ीनत ईमान का मामला है कि अल्लाह ताला जिस बंदे के लिए चाहता है उसके दिल में ईमान को मुज़य्यन और खुशनुमा कर देता है और ईमान की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है। शेर नंबर 4। आती है किस तरह से मेरी कब्ज़ से रूह को, देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। तशरीह अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ मौक़े पर मौत की हकीकत की तरफ इशारा किया है। जैसा कि एक जगह इरशाद है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इसी तरह एक और जगह इरशाद है कि कायनात में जो कुछ भी है वो फ़ना होने वाला है। इस शेर में भी शायर मौत को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम करते हुए कहता है कि दीगर इंसानों की तरह उसे भी मौत को गले लगाना है। मौत से फ़रार किसी सूरत मुमकिन नहीं, लेकिन ज़माने का चलन है कि जब कोई आदमी दुनिया से चला जाता है तो उसके बारे में लोग सवाल करते हैं कि उसे मौत कैसे आई, कोई हादसा हुआ या कोई बीमारी मौत का सबब बनी, यानी मौत ने किसी बहाने से उसे आ लिया है। शायर कहते हैं कि मुझे भी मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आएगी, लेकिन ये मालूम नहीं कि मेरी मौत का बहाना यानी सबब क्या होगा। क्या मैं किसी हादसे का शिकार होऊंगा या मुझे कोई बीमारी आ लेगी। यूं तो इसका इल्म और इख्तियार अल्लाह के पास है, लेकिन मुझे इतना ही देखना है कि मौत का फरिश्ता मेरी मौत का क्या बहाना ढूंढता है। शेर नंबर 5 है। तबलो अलम ही पास है अपने न मुल्क को माल, हमसे खिलाफ हो के करेगा ज़माना क्या। तबलो अलम कहते हैं जब मैदान जंग में नकारा बजता है, और अलम झंडे को कहते हैं। तशरीफ़ हैदर अली आतिश को शायर कलंदर कहा जाता है। वो तवक्कल और कनात का पैकर थे। इस शेर में वो अपनी दरवेशी तबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ज़माना या लोग आम तौर पर उसे ही नुकसान पहुंचाते हैं या उसकी ही मुखालफत करते हैं जिसके पास दुनिया का मालो मता हो, या फिर जिसके पास दुनिया में बादशाहत और शान व शौकत हो। मैं तो एक फ़कीर मंच इंसान हूँ, मेरे पास ना ही मुल्क है और ना ही कोई माल कि जिसके हसूल के लिए दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए। लेकिन और अगर ये दुनिया और लोग मेरे मुखालिफ हो भी जाएं तो उन्हें मुझसे कुछ हासिल ना होगा और ना मेरा कुछ बिगड़ेगा। यूँ समझिए कि शायर ने इस शेर में मालो मता की कसरत से दिलों में पैदा होने वाले हसद की तरफ इशारा किया है। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात मालो दौलत की कसरत से दिलों में हसद पैदा होता है, जिससे रकाबतें और अदावतें जन्म लेती हैं और लोग नफ़रत का शिकार हो जाते हैं। शेर नंबर 6। ये गज़ल का मक्ता है। मक्ता कहते हैं आखिरी शेर को, और उस आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। अगर आखिरी शेर हो और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो फिर उसे मक्ता नहीं कहते बल्कि आखिरी शेर कहते हैं। तो ये मक्ता है। यूं मुद्दई हसद से न दे दात तो न दे, आतिश गज़ल ये तूने कही आशिकाना क्या। तशरीह। अच्छा, इसमें सनत ताल्ला का इस्तेमाल हुआ है। सनत ताल्ला कहते हैं जब कोई शायर अपने कलाम में तारीफ़ और बड़ाई बयान करे अपने कलाम की। हैदर अली आतिश का शुमार लखनऊ के अहम और बड़े शुरा में होता है। उनके अशार में मानी आफरीनी काबिल दाद है। उन्हें अपने तर्ज़ कलाम और ज़बान बयान पर फ़ख्र है। इस शेर में भी वो इसी फ़ख्र का इज़हार करते हुए कह रहे हैं कि मैंने ऐसी खूबसूरत आशिकाना गज़ल की है जिसमें हुस्न तखज़्ज़ुल है, हुस्नो सोज़ो गुदाज है, बेसाख्तगी है, सादगी है और इश्क मोहब्बत के जज्बात की तर्जुमानी है। अब अगर कोई मुखालिफ इसकी दाद ना दे यानी तारीफ़ ना करे तो उसे हसद के सिवा और क्या कहा जा सकता है। हैदर अली आतिश के ज़माने के दूसरे बड़े शायर इमाम बख्श नासिख हैं। इन दोनों की शायराना चशमक चलती रहती थी। इस शेर में आतिश ने मुद्दई का लफ्ज़ इमाम नासिख के लिए इस्तेमाल किया है कि ए आतिश, तेरी इस आशिकाना गज़ल पर अगर वो दाद नहीं दे रहे तो इसकी वजह उनका हासिदानापन है। शेर में सनत ताल्ला का इस्तेमाल हुआ है। सनत ताल्ला से मुराद है कि शायर अपने किसी शेर में अपने कलाम की तारीफ़ व बड़ाई बयान करे। अपने कलाम की तारीफ़ ख़ुद करना, कलाम खूबियों का मुरक्का कलाम में दिलावेज़ी वग़ैरह। शायर इस शेर में रकीब की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर तू मेरे कलाम की तारीफ़ नहीं करता तो ना कर, वरना मेरा कलाम किसी तौर कम पाए का हामिल नहीं है।
ओके, 9th क्लास। आगे शायर का तारुफ है, मश्क है और मश्की सवालात वगैरह हैं। इनमें से सवाल नंबर 1 जो है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ और आगे कुछ सवाल नंबर 5 के अहम नुकात पढ़ देती हूँ। बाकी आप देख लें, आपको जो चाहिए हो आप उनमें से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। बदी के मानी क्या हैं? इसका जवाब है अनोखा। नंबर 2, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसका जवाब है तलमी। 3, तज़ाद किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जवाब है जीम। और चौथा, कलाम में एक लफ्ज़ या अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करना कौन सी सिफ़त होती है? तो इसका जवाब है दाल, तकरार। 5, दर्ज़ैल में से किस सन्फ़ का हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है? इसका जवाब है जीम, गज़ल। सवाल नंबर 5 है कि हैदर अली आतिश की गज़ल जो पढ़ी है उसके अहम नुकात लिखने की कोशिश करें। तो इसके अहम नुकात हैं, नंबर 1, शेर में हाकिम वक्त की तरफ इशारा है कि तू इस खुशफहमी में है कि जो तू सोचता है दुरुस्त है, जो करता है बजा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं कि लोग तेरे हवाले से क्या सोचते हैं। शायर कहता है कि दुनिया में जो कहानियाँ तेरे मुतालिक बनी हैं उन्हें भी सुन और ये भी सुन कि ये खुदा की मखलूक तेरे पीठ पीछे तुझको क्या कहती है, किस तरह याद करती है। नंबर 2 है, शायर कहता है कि अगर दिल जंग कदूरत से पाक हो और हर तरह से साफ़ हो तो फिर दिल एक शीश महल की तरह हो जाता है कि जिसमें चारों तरफ अपने महबूब हकीकी की सूरतें ही सूरतें जलवागर नज़र आएंगी। नंबर 3 है, शायर कहता है कि ज़माने की गर्दिश उसे ही नुकसान पहुंचा सकती है जिसके पास कुछ हो। हमारे पास चूँकि ना ही माल व दौलत है, ना ही बादशाहत है या दूसरा कोई सामान है, तो फिर अगर कोई ज़माना हमारे ख़िलाफ़ हो भी तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। नंबर 4, मौत आती है तो कोई ना कोई बहाना साथ लाती है कि फ़लाँ एक हादसे में मर गया, फ़लाँ हरकत कल्ब बंद होने से मर गया। अब शायर कहता है कि हमारी रूह निकालने गोया हमारी मौत के लिए कौन सा बहाना ढूंढ रही है, यानी देखते हैं कि हमारी मौत का सबब क्या बनता है। नंबर 5 है, शायर कहता है कि ए आतिश, तुमने नहायत पाकीज़ा और बुलंद मज़ामीन की बहुत बढ़िया गज़ल कही है। अब अगर हरीफ हसद से उसकी दाद ना दे तो दूसरी बात है, मगर तुम्हारी ये आशिकाना गज़ल लाजवाब है, बहुत खूब है। ओके, 9th क्लास। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आपके जितने भी हैं इसमें मसाइल वो हल हो गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और कोई भी बात हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें। बहुत शुक्रिया।